آج میں بڑے دکھی دل سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ حکومت وقت پی ٹی آئی حکومت نے جس طریقے سے پاکستان کے ایک آئینی ادارے کے اوپر حملہ کیا اور اس ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے اتنے گھٹیا اور بھونڈے انداز سے اس پر ہر قسم کا پریشر ڈالا، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام ممبران کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور جس سے پاکستان کے ایک اہم ترین ادارے جس کے ذمہ جو ہے وہ پاکستان میں صاف، شفاف اور آزادانہ انتخابات کا انعقاد ہے، اس کو جس طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جس طریقے سے اس پر غلط اور لغو قسم کے الزامات لگائے گئے، جس طریقے سے ان کو ڈرایا اور دھمکایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور آج پاکستان کا ہر وہ شخص جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے وہ اس مذموم حرکت کی جو ہے وہ بڑے سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ کیا تماشا ہے کہ آپ اگر ضمنی انتخابات ہارتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کمیشن ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جو آپ کی ہر بات پہ یس کرے، جو آپ کے اشاروں پر ناچے، جو آپ کے غیر جمہوری رویے، غیر پارلیمانی رویوں پر ہاں کہے اور آپ کے مخالفین کو کچل دے، ان کا جمہوری حق جو ہے ان سے چھین لے، ان کو الیکشن میں ہروا دے؟ آپ ایسے الیکشن کمیشن کو چاہتے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ حکومت اور یہ وزیر اعظم عمران خان جو ساری دنیا کو یہ سبق پڑھایا کرتے تھے کہ پاکستان میں آزادانہ اور شفاف اور غیر ایک منصفانہ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، آج ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آج ان کا خود رویہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا ہے؟ اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے اس انداز سے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن پر چڑھائی نہیں کی۔ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس نے پاکستان میں جمہوریت کو کمزور کیا ہے۔ اس حرکت سے پاکستان میں جمہوریت کی نفی ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، اس لیے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم سے کہ وہ اپنے بیانات کا جائزہ لیں، جو پچھلے 10 سال سے وہ ان کے بیانات تھے وہ دوبارہ اخبارات میں سے نکال کر پڑھیں، دوبارہ ان کا ریکارڈ طلب کریں، اور آج جو کچھ پاکستان میں وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کہتے کیا تھے اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ آج وزراء کی فوج جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑی ہے، یہ بہت ہی ناجائز بات ہوئی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے پیچھے کھڑی، اور ان پر کسی قسم کی گزند، ان پر کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ اور دراصل یہ موجودہ حکومت کی مکمل ناکامی کا بین ثبوت ہے، ان کی مکمل ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ الیکشن ہارے۔ الیکشن کیوں ہارے؟ الیکشن کمشنر کی وجہ سے نہیں، الیکشن کمیشن کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ظلم جو کہ پاکستان کی عوام پر آپ نے ڈھایا، جو مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ ان کا واسطہ آج سے پہلے اس طرح نہیں پڑا تھا۔ آپ نے پاکستان کی عوام کی کمر جو ہے وہ مہنگائی سے توڑ دی۔ آج اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر باتیں کر رہی ہیں۔ آپ نے عام لوگوں کی، غریبوں کی زندگی اجرن کر دی۔ تو وہ غریبوں کا ریئیکشن تھا جس نے پی ڈی ایم کے امیدواروں کو جترایا اور آپ کے امیدواروں کو ہرا دیا۔ کہاں کہاں وہ آپ کو ریئیکشن سب؟ کل قومی اسمبلی میں کیا ہوا، سینٹ میں کیا ہوا؟ یہ وہی کچھ ہے جو کہ آپ نے بویا تھا، آج آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن، پاکستان الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کمیشن کے خلاف جو آپ نے ہرزہ سرائی شروع کی ہے، جو آپ نے بیان بازی شروع کی ہے،
जो आपने तोहमत और हर किस्म का जो उन पर हमला शुरू किया है वो काबिल मजम्मत है और उसको फ़ौरन रोक दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का 22 करोड़ लोग जो हैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप अपनी मर्ज़ी के लोगों को बैठाएं, अपनी मर्ज़ी के उन कमीशन को और जो आपकी इलेक्शनरिंग मशीनरी है उसको आप डरा धमका कर अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकें। ऐसे नहीं होगा और उसकी पुरजोर मजम्मत की जाएगी और हम लोग पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, तमाम जमहूरी इदारे उसके साथ खड़े हैं, पूरी PDM जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। सर ये बताइएगा जो आपने PDM की बात की, PDM में अक्सरियत जमातों ने इस्तीफों की बात की, पीपल्स पार्टी क्या अक्सरियत और जमहूरियत का फैसला नहीं मानेगी क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जमहूरी कदरों पर यकीन रखने वाली पार्टी है और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से एक मौक़िफ़ और वो मौक़िफ़ हमने PDM के सामने भी रखा, अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PDM के भी सामने रखा और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PDM जो हैं उनको हमारे मौक़िफ़ का पता है। हमने हमेशा ये कहा है कि आपको याद होगा कि जिस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में PDM का इनकाद हुआ था, PDM ने जन्म लिया था, वो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की काविशों से कोशिशों से मुनक्किद हुई थी और उसी में ये फ़ैसला हुआ था कि PDM बने और उसके PDM के में ही एक्शन प्लान भी तरतीब दिया गया था कि हम PDM में क्या चाहते हैं, PDM क्या करेगा। उसमें उस वक़्त भी डिस्कशन हुई थी, बहस हुई थी कि शायद हमें फौरी तौर पर असम्बलियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ मौक़िफ़ था और उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन को फौरी तौर पर इस्तेमाल करना और ये जो पाकिस्तान के ईवान हैं इन फोरम को अबंडन कर देना, छोड़ देना जो है वो जमहूरियत की मैं समझता हूँ खिदमत नहीं होगी। तो लिहाजा मुझे शुक्रगुजार हैं हम PDM के कि उन्होंने हमारे इस मौक़िफ़ को सुना, समझा और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखते हैं। इस्तीफ़े जो हैं कोई पहला ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं, आखिरी ऑप्शन। जब उन्होंने आखिरी ऑप्शन के तौर पर कहा तो हमने भी कहा कि ठीक है आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफ़ा हम भी दे सकते हैं। फिर हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन ऐसा ही होगा जैसे एटम बम चलाना है और एटम बम उस वक्त चलाया जाता है जब तमाम हथियार जो हैं वो कारगर साबित नहीं होते, जब हर तरह की ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल की जा चुकी होती हैं, उसके बाद फिर जो है वो ये सबसे बड़ा कदम उठाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा कदम था। कल की जो बात आप कर रहे हैं, कल की बात ये थी कि इससे पहले हमने ये कहा था कि हम पार्लिमानी जितने भी ऑप्शंस हैं पहले हम एग्जॉस्ट करेंगे। पार्लिमानी ऑप्शंस देखें, हमें खुशी है कि हमारे PDM के दोस्तों ने हमारी इस राय को मुकद्दम समझा और इस पर उन्होंने तैयार हो गए कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया गया और हमने हुकूमत वक्त को शिकस्त दी, PDM ने उनको शिकस्त दी। फिर हमने जो है वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लिया। आपके इल्म में है कि PDM ने सेनेट के इंतखाबात में भी हुकूमत वक्त को शिकस्त दी। फिर आपने देखा कि कौमी असम्बली की जो सेनेट की सीट थी उस पर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन लड़ा गया जो कि हाउस है जिसका लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म है, वही हाउस जो वज़ीर आज़म का चुनाव करता है, वहाँ पर इलेक्शन होता है तो उनको शिकस्त फाश होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं, हुकूमत जो है उसके पांव उखड़ जाते हैं, वहाँ एक ज़लज़ला आ जाता है हुकूमत के ईवानों में। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के लोग पागल होकर कभी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ पड़ते हैं, कभी इस तरह के बयानबाजी शुरू कर देते हैं
وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. یہی حال ہوتا ہے جا کر سینٹ میں. وہاں پر سینیٹرز کی میجورٹی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب ووٹ دیتی ہے تو ایون پریزائڈنگ آفیسر نے ایسی حرکت کی کہ ان ووٹوں کو بھی انویلڈ قرار دینے کی کوشش کی جو کہ ویلڈ تھی, جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پر پڑی تھی. تو اس سے حکومت ایکسپوز ہوئی. ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ حکومت جو کہ جھوٹ بولتی ہے, جو کہ میڈیا بیانات کے پیچھے چھپتی ہے, جو اپنے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتی ہے, اس کا اصل چہرہ پاکستان کے سامنے آئے. تو یہ ہے ان کا اصل چہرہ جو ہم ان کا سامنے لے کر آئے. تو کل بھی ہم نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں یہی بات کی, اور میں ان کا شکر گزار ہوں پی ڈی ایم کا کے دوستوں کا کہ جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس یہ نئی صورتحال لے کے جائیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم مارچ میں جا رہے ہیں, لانگ مارچ کی ہم نے تیاری مکمل کر لی تھی 26 تاریخ کے لیے. پھر جب ہمیں کہا گیا کہ لانگ مارچ جب اختتام ہوگا تو آپ نے استعفے بھی دینے ہیں, یہ ایک نئی صورتحال تھی, یہ ایک نیا سسٹم تھا, ایک نیا طریقہ تھا جو ہمارے سامنے آیا, ایک نئی ڈیمانڈ تھی ہمارے سامنے. تو ہم نے وہاں پر یہ عرض کی کہ ہمیں اس کے لیے اجازت لینے کے لیے سینٹرل ایگزیکٹو کے پاس جانا پڑے گا. تو پی ڈی ایم کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی جائز بات ہے, ان کو اپنی سی سی کے پاس جانا چاہیے اور وہاں سے پھر جو بھی فیصلہ ہو اس سے ہمیں آگاہ کر دینا چاہیے. راجہ صاحب یہ بتائیں 2018 تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا کب نام دے رہی ہے؟ وقت بہت کم رہ گیا ہے. دیکھیں سینٹ میں تو کم از کم آپ کے پاس 30 دن ہوتے ہیں, ایک مہینے کے اندر آپ نے کرنا ہوتا ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس کا فیصلہ کر لے گی. کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں ہے, ہم اس سے بڑے فیصلے کر چکے ہیں. نہیں دیکھیں بات سنیں, یہ ڈسکشنز تو بہت ساری ہو رہی ہیں اور ہوں گی, لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو اتفاق رائے سے ہوگا. رائے صاحب یہ بتائیں 2018 میں جبکہ ابھی تمام جمہوری پارٹیاں جو ہیں اپوزیشن کی وہ استعفے دینے پہ تیار ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ایک روڈ میپ دیا ہے اور ان کی خدمت میں ہم نے پیش کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں, ہم نے کہا تھا نا, ہمارے پی ڈی ایم کے دوست کہتے تھے کہ ہمیں کسی قسم کے الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. ہم نے ان کو کنونس کیا اور ہم نے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا, ہم نے سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا, ہم نے قومی اسمبلی میں جو ہے وہ سینٹ کی سیٹ پر حصہ لیا, ہم نے چیئرمین سینٹ کا حصہ لیا. اس سے حکومت وقت ایکسپوز ہوئی, ان پر بہت بڑا پریشر ہوا اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہے. اب ہم نے یہ کہا, ہمارا آج بھی روڈ میپ مکمل نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں جائیں, پنجاب میں عدم اعتماد لے کر آئیں, وہاں بڑی تھن میجورٹی ہے ایک بات. اس کے بعد ہم قومی اسمبلی میں آ سکتے, قومی اسمبلی میں ایک اسپیکر کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لائیں, اور پھر ہم لانگ مارچ بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کی تو تیاری ہم کر لی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو ہم پاکستان کے عوام کی جو رائے عامہ اس کو ہموار کرتے ہوئے پھر استعفوں کا اگر موقع آتا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. راجہ صاحب ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر نے خط لکھا ہے اسپیکر کو کہ سینٹ الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا, پہلے اسمبلی کے اندر سینٹ الیکشن اور بعد میں چیئرمین کے, اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا کام ہے, وہ جو مرضی کرتے پھریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا, آپ خود لوگ وہاں پر موجود تھے, قومی اسمبلی میں وہ ہارے, سینٹ میں وہ ہارے, اور ان کو شکست فاش ہوئی ہے اس وجہ سے. اور اس کے بیسک میں نے آپ کو ریزن بھی بتایا ہے, میں ایک سیاسی کارکن ہوں. ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج جس حالات سے دوچار ہیں, جو ان پر بیت رہی ہے, جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں, وہ حکومت وقت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. حکومت نے جو پاکستان کے عوام سے وعدے کیے تھے, حکومت نے جو بہت لمبے ٹال کلیم کیے تھے, 1 کروڑ نوکری دینے کا, 50 لاکھ گھر دینے کا, تنخواہوں کو ڈبل کر دینے کا, بجلی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا, گیس کی قیمتوں کو نیچے لانے کا,
कोई एक वादा भी वो पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं आज हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, और जब अवाम ख़िलाफ़ होते हैं तो उनके नुमाइंदों पर भी उनका असर आता है। तो पाकिस्तान की असम्बली में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस अंदाज से उन्होंने एतमाद का वोट लिया वो आपके सामने है। वो जैसे जंगी कैदियों को पकड़ कर लाया जाता है ऐसे MNAs को लाया गया, और वो अकेले ही भाग रहे थे, उनके मुकाबले में तो कोई भाग नहीं रहा था, इसलिए वो अव्वल भी आ गए। राय साहब ये बताएं, राय साहब ये बताएं, 2018 के इंतखाबात को 2018 के इंतखाबात को पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन ने RO का इलेक्शन करा दिया जरदारी साहब समेत। ऐसी क्या बात आपको नज़र आ गई कि आज सारी अपोजिशन पीपल्स पार्टी समेत जरदारी साहब समेत उसके साथ खड़ी हो गया है? क्या आपके कोई टारगेट हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं? किसके साथ खड़े होंगे? इलेक्शन कमीशन का, जिसको आप RO का इलेक्शन कहते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाया ना जी, वो तो अभी उसके बाद बने, 18 के इलेक्शन के बाद बने हैं, नंबर 1। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस अंदाज से फैसले किए हैं मौजूदा इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में, और जिस तरह नेशनल असम्बली का इलेक्शन कराया गया, सेनेट का, तो हम समझते हैं कि हुकूमत के दबाव के बावजूद जब उन्होंने कहा कि हम ओपन जो है वो वोट करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े रहे, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से आइन और कानून के साथ खड़े होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिए, मैं ये समझता हूँ ये इस बात की बेयन सबूत था कि ये शख्स आइन और कानून का एहतराम करने वाला है। लिहाजा इससे उम्मीद बांधी जा सकती है कि पाकिस्तान में साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होंगे। राजा साहब ये बताइए कि अभी आप ये फरमा रहे थे कि PDM के दोस्तों ने हमें मौका दिया, हम CEC जाएं, इतने मुलायम अंदाज से आप बता रहे हैं। रात तो मौलाना साहब को इतना गुस्सा था कि उन्होंने सिर्फ 8 जुमले कहे और फिर चल दिए। तो इतनी तलखी के बावजूद अभी भी आप समझते हैं कि PDM टूटी नहीं है? नहीं, देखिए मौलाना साहब PDM के सदर हैं और बड़े एक मंजे हुए सियासतदान है खुदा के फजलो करम से, और बड़े एक नहायत ही मैं आपको कहूँ कि तजर्बाकार सियासतदान में उनको कहता हूँ हमेशा, और वो मेरे सदर हैं, मैं उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ PDM का। तो PDM कहाँ टूटी है, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। अदालत कब जा रहे हैं चेयरमैन साहब के फैसले का? अदालत कब जा रहे हैं चेयरमैन? और ये PDM के प्लेटफॉर्म से गए गिलानी साहब को बहाल कराने के लिए, उसके लिए मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को बंद कर दिया था। आज भी पार्लियामेंट बंद है। हमें वहाँ से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो लेकर अपनी पिटीशन के साथ हमने लगाने हैं, और हमने हाई कोर्ट जाना है। मैं बात ख़त्म कर, तो हुकूमत की ये जो चालबाजियाँ हैं छोटी छोटी, ये जो उनकी असल चेहरे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो हमें ये भी अभी तक इजाज़त नहीं मिली कि चेयरमैन जो है उसने कहा है जी कि मेरा तो सेक्रेटेरिएट बंद है, सेक्रेटरी कहते हैं कि जी हम तो जा नहीं सकते अंदर, लिहाजा वो कल खुलेगा। अब अगर कल पार्लियामेंट खुलती है, हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो हम पहली फुर्सत में, हमारी पिटीशन तैयार है, सिर्फ उसके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कानून, पाकिस्तान का कोई कानून, कोई इलेक्शन जो है वो सिस्टम जो है वो इन वोटों को मुस्तरद नहीं कर सकता कि ये तो ज़्यादा मुस्तनद है कि आपने किसी के नाम पर मोहर लगाई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट होंगे। जहांगीर खान कौमी असम्बली से कहा है कि इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी तश्कील में, क्या पीपल्स पार्टी उसमें शिरकत करेगी? देखिए हम हर इस्लाहात की कमेटी को में जाना चाहेंगे, बशर्ते के वो इस उसके अंदर जो इंटेंट है, इंटेंट ये होना चाहिए कि हम मुल्क में साफ, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात करवाएं। और अगर ये इस इंटेंशन के साथ हमारे साथ कोई बैठना चाहता है तो ज़रूर बैठे, उसमें कानून साजी होनी चाहिए। और बुनियादी तौर पर पार्लियामान का तो काम ही यही है कि वो देखे कि जहाँ कानून साजी की ज़रूरत है वहाँ पर बेहतरीन कानून साजी हो। सर ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी की CEC इस्तीफों के फैसले की मुखालफत करती है तो
क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहेगी या अपनी राहें गुजारेगी? देखिए, मैं हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो इदारा है। हम सब उसके ताबे हैं। इवन लीडर जो है हमारे वो कोई अकेले में कोई फैसला नहीं करते। ये हमारी एक रवायत है, ट्रेडिशन है। तो अगर सीईसी कोई भी फैसला करेगी हम उससे पीडीएम को आगाह कर देंगे। यही हमने पीडीएम से भी गुजारिश की है और पीडीएम ने भी हमें इसी बात की इजाज़त दी है कि आप सीईसी में जाएं, अपना ये सारा केस रखें और जो भी फैसला होता है उससे हमें आगाह कर दें। ये बताइएगा जिस तरह साबिक सदर साहब ने मुतालबा किया कि नवाज शरीफ आए फिर ही हुकूमत खिलाफ जो तहरीक है वो शुरू कर सकते हैं, मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब का कितना होना ज़रूरी है हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कामयाब बनाने? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले तो मैं ये थोड़ी सी आपसे इजाज़त लेकर ये बात करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कई बातें ऐसी हैं जिनका हुलिया बिगाड़ दिया जाता है। वो उस कंटेक्स्ट में बात नहीं होती जिस कंटेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है, सोशल मीडिया पर आ जाती है या सीना बसीना गदड़ जो चलना शुरू होते हैं। मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत ही काबिल एहतराम है और पीडीएम के वो एक सीनियर पार्टी की जो है बड़ी जमात के सरबराह हैं और उनका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और मैं समझता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने जिस अंदाज से बात की है वो ये नहीं था। वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि भाई मैं 14 साल जेल में रहा। जब मैं 14 साल जेल में था, मैं पाकिस्तान के अंदर था तो उस वक़्त की हुकूमत पर दबाव ज़्यादा था, उन पर प्रेशर आता था। तो वो तो एक अपनी बात कर रहे थे। तो वो जब उन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे लेकर चलेंगे तो इकट्ठे तो आज भी हम हैं। पीपल्स पार्टी भी एक वहीं बैठती है, PMLN भी वहाँ पर है, बाकी 8 जमातें भी हैं, JUI भी है, ANP भी है, मैंगल साहब की जमात भी है, चकजई साहब की जमात भी है। ये कोई मसला नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम 10 जमातें हैं इस वक्त, हम अलहदा जमातें हैं, हमारे अपने अपने मंशूर हैं, हमारे अपने अपने निज़ाम हैं और हम अपने अपने निज़ाम के तहत जो है अपनी बात उस फोरम पे रखते हैं और उस पर फिर डिस्कशन होती है। और अगर आज तक ऐसा हुआ है कि जो बात हर बात जो है वो कंसेंसस के साथ हो गई है। अब इस पॉइंट पर कि भाई इस्तीफ़े हमें फौरी दे देने चाहिए या लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों के बगैर होना चाहिए या हुकूमत पर दबाव डालने के और क्या तरीके हैं, क्या हमें अदम एतमाद के लिए पंजाब में जाना चाहिए, क्या अदम एतमाद के लिए हमें कौमी असम्बली में आना चाहिए, क्या अदम एतमाद के लिए हमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाना चाहिए। ये सब बातें हैं जो हमने इस फोरम पर रखी हैं। तो मैं यकीन को जब उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाएं, अब हम उनके पास जाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला होगा वो लेकर आकर हम वापस पीडीएम में रखेंगे कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। साहब PMLN तहरीक अदम-ए-एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ क्यों कतरा रही है, क्यों भाग रही है? आप तो मुसलसल जोर दे रहे हैं। बिलावल साहब लाहौर भी गए, हमजा से मिले, काफ लीग से मिले, लेकिन नून लीग क्यों अवॉइड कर रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी अवॉइड करने की बात है। देखिए, डिबेट डिस्कशंस तो होती है ना, हर चीज़ के लिए आपके दरमियान बहस होती है, आप उसके प्रोन एंड कॉन्स देखते हैं, आप देखते हैं मस्बत और मनफी पहलू क्या हैं और वो मैं समझता हूँ कि अभी उस पर सारी बात होगी। ये हमारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट्री ऑप्शंस हैं या जो भी जमहूरी ऑप्शंस हैं वो सब हम एग्जॉस्ट करें। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये पार्लियामान में हम मौजूद थे तो हमने हुकूमत वक्त को बहुत बड़ी चोट लगाई। अगर हम मौजूद ना होते तो क्या ये चोट लगती उनको? क्या उनका चेहरा नज़र आता? क्या आपको समझ आती कि मेंबरान कौमी असम्बली उनके साथ नहीं है? क्या आपको समझ लगती कि सेनेटर्स जो हैं वो उनके साथ नहीं हैं? ये इसलिए हुआ कि हम पार्लियामान में मौजूद हैं। पार्लियामान किसी मुल्क भी ये बहुत बड़ा फोरम होता है, वहाँ जो आवाज़ उठती है वो बड़ी ताकतवर होती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। पहले दिन से मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 मेंबर्स थे 97 में, इफ़ यू रिमेंबर 17 और उनको मशवरा दिया गया था कि आप बाइकआउट करें और असम्बली में ना जाएं। वो 17 मेंबरान के साथ असम्बली में अपोजिशन लीडर बनकर बैठी और उन्होंने अपना जमहूरी हक अदा किया।
हमारी एक रवायत है, हम अपने दोस्तों को भी इस पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। अपना मौक़िफ़ पेश करना जो है वो हमारा हक़ है। और हम ना तो देखें, हमें ये आप नहीं कह सकते जो आप कह रहे थे कि पीडीएम टूट जाएगी और उसकी ज़िम्मेदारी को हमारे पर। हम नहीं चाहते कि पीडीएम टूटे। क्यों टूटेगी पीडीएम? पीडीएम को तो तश्कील देने में सबसे बड़ा हाथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और बड़ी उन्होंने जदोजहद के बाद वो एपीसी का इनकाद किया था, और उन्होंने फिर उसके पास एक्शन प्लान बने थे, उसके सारे पॉइंट्स हैं और वो इन रिटन फॉर्म है। हम चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम के ऊपर चलें, और मुझे यकीन है कि हम अपने दोस्तों को कन्विंस कर लेंगे। हाँ, अगर हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कोई फैसला देती है तो वो भी हमारे लिए मुकद्दम है, वो हम लेकर अपने दोस्तों के पास जाएंगे। और एक बेहतर राजा साहब, आज वज़ीर आज़म ने स्पीकर को खत लिखा है जिसमें पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया है इंतखाबी इस्लाहात के लिए कि आइंदा इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाए, और उस खत में लिखा है कि सेनेट इंतखाबात में पैसा चला है इस बात में। तो क्या आप लोग इंतखाबी इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से जो कमेटी बनाई जाएगी उसकी हिदायत पर उसमें शिरकत? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन पैसा चलने का इतना पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने 75 करोड़ रुपया जो है एक मेंबर कौमी असम्बली को ऑफ़र की है। 50 करोड़ एक दफ़ा और 15 करोड़ 65 करोड़ रुपया। तो पैसा तो अगर चला है तो सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब को पता होगा, उन्होंने चलाया है और उन्होंने ही अमीर तरीन लोगों को टिकट दिए। हमारे तो जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं सिंध से, वो आप मुलाज़ा फरमा लीजिएगा, वो टिकट वो क्या पैसे वाले लोग हैं या पीपल पार्टी के वो कारकुन हैं, जरीना कारकुन हैं, वफादार कारकुन हैं और सेनेट के लिए बड़े मौजूद उम्मीदवार हैं। हमने तो उन लोगों को टिकट दिए हैं। अब पीटीआई ने जिन जिन को टिकट दिया वो आपके सामने, अरबपति और खरबपतियों को तो आपने दिए, एटीएम वालों को तो आपने टिकट दिए, तो फिर पैसा तो चला है तो आपने चलाया है भाई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कोई पार्लिमानी कमेटी बनाएं, और वो पार्लिमानी कमेटी में जाना ना जाना जो है वो पीडीएम के फोरम से हम उसका फ़ैसला करेंगे। हम आपकी इंटेंशन देखेंगे, अगर आपकी इंटेंशन मस्बत है, अगर वो मुल्क व कौम के फ़ायदे के लिए है, अगर वो सिस्टम के फ़ायदे के लिए है, तो हम उस पर जो पीडीएम का फ़ैसला होगा उस पर अमल करेंगे। आखिरी सवाल रज़ाक साहब कुछ पूछना चाहते हैं। साहब ये बताइए कि पीडीएम का जो नैरेटिव आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये सारे चीज़ वगैरह बने जी, सारे चीज़ वगैरह बने हुए पाकिस्तान क्यूबा बन गया कि इतनी बगावत, ये सारी बातें आप कहते हैं कि हम सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो अपनी जदोजहद करें, वो कहते हैं कि सिस्टम से बाहर जाएं। आप अकेली जमात हैं, बाकी 9 हैं, तो आप किस तरह उनको कायल कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो इलेक्शन में हिस्सा लिया गया है, ज़िमनी इंतखाबात में, सेनेट के इंतखाबात में, उसके बाद कौमी असम्बली की सेनेट सीट के लिए, फिर चेयरमैन सेनेट के लिए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, तो ये मैं बिल्कुल इसमें हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि ये रास्ता ठीक है, और इस पे हमने अपने ईवानों को नहीं छोड़ना, हमने उनको कोई स्पेस नहीं देना। हम ईवानों के अंदर भी जदोजहद करेंगे, ईवान के बाहर भी करेंगे, हम सड़कों को भी गर्म करेंगे, हम हाउस के अंदर भी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में हमारी बहुत बड़ी तादाद है, वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते, वो हाउस नहीं चला सकते, वो तो उनकी बदकिस्मती है कि उनको समझ नहीं है। हम चलवाते हैं हाउस। हम चाहते हैं कि इस पार्लियामान को काम करे और पाकिस्तान की आवाम का कोई फ़ायदा हो। हम जब चाहते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आओ इधर, पाकिस्तान के लोगों को जो मुश्किलात हैं उसको बहस में लाओ, उसका जवाब दो कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे, बिजली के बिल क्यों बढ़ गए हैं, गैस के बिल क्यों बढ़ गए हैं, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, महंगाई और बेरोज़गारी कहाँ जा रही है, आसमान के ऊपर पहुँच गई है, उसके लिए कुछ करो। ये अपोजिशन नहीं होगी तो कौन कहेगा उनको? इसलिए वहाँ पर भी हमारा एक रोल है, सड़क पर भी हमारा एक रोल है, लॉन्ग मार्च में भी हमारा एक रोल है, हर रोल को, जलसों में भी हमारा एक रोल है, रैलीज़ में भी हमारा एक रोल है। तो ये तमाम जमहूरी हथियार हैं जो हमारे पास हैं, हम हर हथियार को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस्तीफ़े हैं वो एटम बम है, आखिर में हम वो भी चलाने से गुरेज नहीं करेंगे।